Hello students, I welcome you all in today's session. We will start another unit named as chemical kinetics. Chemical kinetics. In the 11th class we have studied the thermodynamics and equilibrium. In the thermodynamics, we tells about the feasibility of the reaction, about the spontaneity of the reaction, whether the reactions are feasible or non-feasible, whether the reaction will proceed or not proceed. But in equilibrium, we can tell us about the extent of the reaction. Well, how much extent of the reactant forms the product, how much product is formed, and how much amount of the reactant decomposed at the equilibrium point and some other point also. But in today's this unit, chemical kinetics, we will discuss about the motions of the chemicals, the phenomena which are related with the motion of the chemicals. I will discuss briefly today in this video about the unit. This unit includes rate of the reaction, speed of the reactions, how the reaction will proceed, and what are their rates, in what time the reaction complete, factors which affect the rate of the reactions. वो कौन से factors हैं जो reactions को affect करते हैं, reaction के rate को affect करते हैं. बहुत सारे factors हम discuss इसमें करेंगे इस unit में. उसके बाद after that rate law equation that we have studied in the 11th also, and rate law equation method we will discuss in this unit. Rate law equation method. After this we will discuss about the order of reaction, what is the order of the reaction and how the reaction rate depends on that, how the order affect the rate of the reaction. After that we will discuss about the molecularity of the reaction, and then integrated rate law equation to calculate the rate constant, to calculate the time, to calculate the half-life period. We will discuss about the pseudo-unimolecular reaction. We will discuss about the activation energy and catalyst, how the catalyst change the rate of the reactions, and catalyst helps in determination of the rate of the reaction, how the catalyst change the rate of the reactions, and then we will discuss the last topic, collision theory. But in today's video we will discuss about the rate of the reactions. In the concentration terms we will calculate the rate of reaction. क्या होती है rate of reaction, कैसे हम उनको कैलकुलेट करेंगे, कंसंट्रेशन के टर्म पे कैसे उसको हम देखेंगे, कैसे हम उसको कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं यहां से. तो कंसीडर कीजिए हमारे पास में हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, क्लियर. आर है और वो चेंज हो रहा है किसमें, पी में. आर किसमें चेंज हो रहा है बच्चों, पी में चेंज हो रहा है. टी जब जीरो है हमारे पास में इनिशियली, जब टी क्या हमारे पास में जीरो है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन मैक्सिमम है, एंड दैट इज R1. लेट दिस इज द ग्राफ बिटवीन द टाइम एंड कंसंट्रेशन. This is the initial concentration of the reactant R1 when time is equal to 0. When time is equal to 0, concentration of the reactant is R1. And concentration of the product is P1, that is equal to 0. Clear? But after the 5 minutes, I have assumed कि reaction 5 मिनट के बाद क्या होगा, reactant decompose होगा और product का formation होगा. reactant कम होता जाएगा, product बनता जाएगा. reactant मान लीजिएगा डिक्रीज होके R1 से कंसंट्रेशन पहुंच गया कहां पे, R2 पर. concentration of the reactant changes from R1 to R2 and concentration of the product changes from 0 to P1. concentration of the product increase and concentration of the reactant will decrease. Clear? Now the rate of the reaction ROR, rate of the reaction is change in concentration upon में change in time. Change in concentration, we
minus the lower concentration from the higher concentration. This is the change in concentration of the reactant and change in time. This is the rate of the reaction. Decrease in the concentration of the reactant upon with change in time. Clear? And in this side, change in concentration of product upon with change in time. Clear? Change in concentration of the product upon with change in time. Higher concentration minus lower concentration. Higher concentration is P1. Lower concentration is 0. Initially the concentration of the reactant product was 0. So the rate of reaction in terms of the reactant is decrease in concentration of the reactant upon with change in time. In terms of the product, increase in the concentration of the product upon with change in time. Clear? This is the change. Delta represent the change. This square bracket represent the concentration and R is the reactant. Change in concentration of the reactant upon with change in time. We put the negative sign. Negative implies the decrease in concentration. नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव होगा. नो, बिल्कुल नहीं. रेट ऑफ रिएक्शन कैन नेवर बी इन नेगेटिव फॉर्म, बट चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में चेंज इन टाइम. दिस नेगेटिव, ये जो नेगेटिव साइन है ये सिर्फ हमें ये बताता है कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का घट रहा है, डिक्रीज होगा. नथिंग मोर देन दैट. क्लियर? इन दिस साइड, change in concentration of the product upon with change in time. This is the average rate between the time 0 to 5 minutes. Because the rate of reaction at every time changes. Because at every time concentration decreases, changes. Reactant concentration decreases, product concentration increases, but never remains constant. Clear? Initially the rate of the reaction is faster, but after the reaction proceed, when the reaction proceed in the forward direction, rate of reaction will decrease. So we calculate the average rate between the two time intervals. The rate of reaction initially was fast, but after the 5 minutes it was slow. Clear? Because in the starting concentration is higher, and after that time 5 minutes concentration was lower. Let after this T1, ये टाइम मान लिया हमने कितना मिनट है बच्चों? 5 मिनट है. ये 5 मिनट है. 5 मिनट में 5 मिनट के ऊपर कंसंट्रेशन आर रिएक्टेंट का कितना हो गया? R2, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हो गया P2. मान लीजिए ये लीजिए, मैंने कुछ भी टाइम ले सकते हैं हम, किसी भी टाइम पे. क्लियर? रिएक्शन में हमारे पास में R चेंज हो रहा है P के फॉर्म में. रिएक्टेंट का कोएफिशिएंट 1 है, प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट 1 है. जितने टाइम में जितना रिएक्टेंट टूटेगा उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी होगा. अगर ये जितना 1 मोल टूट गया तो ये भी 1 मोल बनेगा, क्योंकि कोएफिशिएंट सेम है यहां पे. क्लियर? Next, suppose we have a reaction PCl5 phosphorus pentachloride. On heating it will decompose into the PCl3 plus में Cl2. PCl5 का डिकम्पोजिशन हो, PCl3 और Cl2 का फॉर्मेशन होगा. जितने टाइम में PCl5 डिकम्पोज होगा, जितना मोल डिकम्पोज होगा उतना ही मोल हमारे पास में PCl3 का बनेगा, और उतना ही मोल, exactly the same mole of the Cl2 will be formed. Clear? So, in term of the PCl5 rate of reaction, what is the rate of reaction? Change in concentration upon with change in time, and we are describing here as average rate of the reaction. क्या बता रहे हैं हम? Average rate. Average rate क्या होगा? Change in concentration of the reactant PCl5 upon with change in time is equal to whether we calculate the rate of reaction in term of the PCl5, in term of the PCl3, or in term of the Cl2, it will remains always same. क्यों? क्योंकि ये जितना डिकम्पोज होगा उतना ये बनेगा, उतना ये बनेगा, उतने ही टाइम में भी बनेगा, है ना? तो PCl5 का कंसंट्रेशन चेंज जितना होगा उतना ही चेंज इनका भी होगा, उतना ही चेंज इनका भी होगा. अपन में चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम इक्वल होगा तीनों का रेट. Whether we calculate the rate of reaction in term of the reactant or in term of the products, rate of reaction will be same if the coefficient of the reactant and product are same. After that, हम यहां से कैलकुलेट कर रहे हैं एवरेज रेट के बाद इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन. इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन. इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन होता है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ द टाइम पे, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ द टाइम पे, एट वन टाइम. मेरे पास सिंपल सी एक बाइक है, सपोज कीजिए, तो क्या होगा कि मैंने स्टार्टिंग किया उसको चलाना.
हो सकता है इनिशियली में स्पीड कम हो, बाद में स्पीड तेज हो जाए। स्पीड क्या होता रहता है? चेंज। तो अगर मैं 2 टाइम इंटरवल्स के बीच का स्पीड लेना चाहता हूं तो दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। लेकिन मान लीजिएगा बाइक का जो स्पीडोमीटर है वो डिजिटल है आपका, तो क्या बताएगा? उस पर्टिकुलर टाइम पे उसका स्पीड बता देगा आपको कितना है, 43 है, 46 है, 47 है, कितना है, ज्यादा नहीं भगानी है बाइक, इतनी रखनी है, 50 के इर्द गिर्द। क्लियर? सो द एट दैट टाइम देयर विल बी वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन। मैं ये नहीं कहता हूं कि उस टाइम पे जो बाइक है वो भी एग्जैक्टली स्पीड बताएगी, नहीं, उसमें भी थोड़ा बहुत चेंज होता है। 43 से हो सकता है थोड़ा सा कम हो, थोड़ा सा ज्यादा हो। तो रेट ऑफ रिएक्शन जब हम निकाल रहे हैं इंस्टेंट ऑफ द टाइम पे, तो उस टाइम पे भी कुछ चेंज होगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा, स्मॉल चेंज होगा, वेरी स्मॉल चेंज होगा। दिस इज द लार्ज चेंज इन टर्म ऑफ द एवरेज रेट, दिस इज द लार्ज चेंज, और ये क्या होगा? स्मॉल चेंज होगा। स्मॉल चेंज को मैं लिखूंगा डी बाई डी से। डी स्मॉल चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अपॉन में स्मॉल चेंज इन द टाइम। इन टर्म ऑफ द रिएक्टेंट वी पुट द नेगेटिव साइन। क्या बताता है हमें? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। और इन टर्म ऑफ द प्रोडक्ट क्या होगा? डीपी बाई डी टी इक्वल होगा, चाहे आप डिक्रीज इन कंसंट्रेशन के फॉर्म में निकालो बच्चों, चाहे आप इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट के फॉर्म में आप निकालिएगा, सेम होगा अगर कोफिशिएंट सेम है तो। क्लियर? नेक्स्ट, अब मैं ग्राफिकली निकालते हैं। ये तो हमने क्या निकाला था? एवरेज रेट निकाला था ग्राफिकली। ये क्या था? R1, ये क्या था? R2 आफ्टर द 5 मिनट, ये क्या था? P1, ये क्या था? P2 आफ्टर द 5 मिनट। तो एवरेज चेंज, ये चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ये क्या? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन में चेंज इन टाइम। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अपॉन में चेंज इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन में चेंज इन टाइम। ये ग्राफ के थ्रू हमने निकाला। मैथमेटिकल डाटा हमारे पास में यहां से अवेलेबल होंगे ग्राफ के थ्रू। आइए आगे बढ़ते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इन टर्म ऑफ द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा वो? एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ द टाइम जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। फिर से एक ग्राफ हम प्लॉट करते हैं, 2 ग्राफ प्लॉट करता हूं मैं सेपरेटली। यहां पे मैंने कंबाइंडली 2 ग्राफ को एक साथ में प्लॉट कर दिया है, रिएक्टेंट के फॉर्म में भी और प्रोडक्ट की फॉर्म में। दिस इज द प्रोडक्ट, दिस वन इज द रिएक्टेंट। क्लियर? अब क्या है, मैं फिर से वही प्लॉट कर रहा हूं ग्राफ, लेकिन अभी किसके फॉर्म में? सिर्फ रिएक्टेंट के फॉर्म में, और यहां पे किसके फॉर्म में होगा? इन टर्म ऑफ द प्रोडक्ट की फॉर्म में। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का घट रहा है और कंसंट्रेशन यहां पे प्रोडक्ट का बढ़ रहा है। मान लीजिएगा मैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहता हूं बच्चों, किस टाइम पे? मैं निकालना चाहता हूं टी टाइम पे। किस टाइम पे बच्चों? टी टाइम पे। तो ये क्या हुआ आपका? टी टाइम हुआ। क्या हुआ ये आपका? टी टाइम आपका हो गया। तो टी टाइम पे क्या हुआ? मैं निकालना चाहता हूं टी टाइम पे कंसंट्रेशन कितना है रिएक्टेंट का। तो मैंने क्या किया? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। आई हैव ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन द टाइम एक्सिस। क्लियर? एंड देन ड्रॉ ए टेंजेंट which touches the curved surface of the reactant at this point। एक मैंने टेंजेंट को ड्रॉ किया उस टाइम पे जब उस कर्व को, रिएक्टेंट के कर्व को उस पे वो क्या करे? टच करे। क्लियर? दिस इज द टेंजेंट tan theta and we are seeing in equation in this graph कि स्लोप आपका क्या हो रहा है? घट रहा है, डिक्रीज, स्लोप इज डिक्रीजेस, सो नेगेटिव स्लोप ही है। स्लोप इज इक्वल टू tan theta, we knows about this, and tan theta is equal to concentration perpendicular upon में base, concentration upon में time, and slope is in the negatives minus slope। तो change in concentration, very small change in concentration upon में very small change in time, that is rate of the reaction with rate of reaction, that is the instantaneous rate of the reaction। अब आगे बढ़ना है। इन टर्म ऑफ द प्रोडक्ट, इन टर्म ऑफ द प्रोडक्ट क्या होगा? स्लोप पॉजिटिव में होगा और कुछ नहीं होगा, बस स्लोप पॉजिटिव में होगा। ये ग्राफ आपका टाइम और कंसंट्रेशन के बीच में, वही परपेंडिकुलर डालेंगे, टेंजेंट डालेंगे जो इस कर्व सरफेस को यहां पे टच करेगा, फिर क्या होगा? वही कंसंट्रेशन होगा और ये क्या होगा? चेंज इन टाइम होगा। वेरी स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन, वेरी स्मॉल चेंज इन द टाइम। ये इस पर्टिकुलर टाइम का क्या होगा? इस टाइम का क्या होगा? ये इस टाइम पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन आपका आ गया है। प्रोडक्ट के फॉर्म में पॉजिटिव और स्लोप रिएक्टेंट के टर्म में कैसा आएगा? नेगेटिव। बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। लेकिन
मान लीजिएगा मैं अभी डिस्कस कर रहा था PCl5 वाली रिएक्शन को, यहां पे तो कोफिशिएंट सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एक एक थे, बट मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। 2 मोल ऑफ NO प्लस O2 चेंज इनटू 2NO2। सुनना भी ध्यान से, NO के 2 मोल है, O2 का 1 मोल है और NO2 के 2 मोल हमारे पास में बने हैं। क्लियर? क्या है वो हमारे पास में, जितने टाइम में NO डिकंपोज हो रहा है उससे O2 हाफ डिकंपोज हो रहा है, मतलब इसका रेट ऑफ डिकंपोजिशन और इसका रेट ऑफ डिकंपोजिशन इक्वल नहीं है, और इसका रेट ऑफ डिकंपोजिशन और इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन इक्वल नहीं है, क्योंकि ये तो 1 मोल डिकंपोज हो रहा है, ये 2 मोल बन रहा है हमारे पास में। यहाँ पे फॉर्मेशन क्या हो रहा है 2 मोल्स का, डिकंपोजिशन कितने मोल का हो रहा है 1 मोल का। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ डिकंपोजिशन यहाँ पे क्या नहीं है बच्चों, सेम नहीं है। क्यों नहीं है सेम? क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, अलग अलग है। क्लियर? तो रेट ऑफ डिकंपोजिशन क्या होगा, डेल्टा NO बाय डेल्टा टी। यहां पे क्या होगा, डेल्टा O2 बाय डेल्टा टी। यहां पे क्या होगा, डेल्टा NO2 बाय डेल्टा टी। लेकिन ये क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। ये क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, जितने टाइम में ये 2 डिकंपोज हो रहा है 2 मोल, ये 1 डिकंपोज हो रहा है, तो रेट ऑफ डिकंपोजिशन बराबर नहीं है। ये 1 मोल डिकंपोज हो रहा है, ये 2 मोल डिकंपोज, 2 मोल फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसका डिकंपोजिशन इसका फॉर्मेशन भी बराबर नहीं है। तो रेट ऑफ डिकंपोजिशन, rate of decomposition, rate of formation, negative because these are the reactants and this one is the product post side NO2 by delta T। अगर मेरे को इनको बराबर बनाना है, अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फॉर्म में निकालना चाहूं और मैं उनको इक्वलाइज करना चाहूं तो क्या होगा, सिंपल, इसका रेट क्या है डबल, डिकंपोजिशन का रेट इसका क्या है डबल, और इसका क्या है इससे हाफ है। तो इसका जो रेट है जो डबल है उसको इसके रेट के इक्वल बनाने के लिए मैं इसके रेट को 2 से डिवाइड कर देता हूं। क्लियर हुआ? आगे सुनो, अब क्या होगा, इन दोनों का रेट क्या होगा, सेम आ गया। आगे बढ़ो, इसका रेट डिकंपोजिशन और इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन, तो इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या है 2 टाइम्स, इसका मतलब क्या, इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन 2 टाइम्स हुआ इससे O2 के डिकंपोजिशन। तो क्या करूं, अगर इक्वल बनाना है तो इसका डबल हुआ रेट, तो डबल हुआ तो बराबर बनाने के लिए क्या करूंगा, इसके रेट को 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो अगर हमारे पास नॉन स्टिचियोमेट्री रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है, नॉन स्टिचियोमेट्री रिएक्शन है, तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन को इक्वलाइज करने के लिए हम रेट ऑफ डिकंपोजिशन और रेट ऑफ फॉर्मेशन को उसके कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन क्या जाएगा आपका इक्वल। किस टाइप की रिएक्शन है ये, नॉन स्टिचियोमेट्री रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, फाइन ना, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।